Means I will first give you the orientation of essay paper. ठीक है, and 3 बजे से अपना क्लास स्टार्ट करेंगे. हाँ, इसलिए तुम बाद में भी आ सकते थे. वो टॉपिक्स खोलो. नाउ आर यू गिविंग एग्जाम दिस ईयर? प्रीलिम्स आप दे रहे हैं? सब सारे लोग नहीं दे रहे? ठीक है. सो एक बेसिक जनरल स्टडीज का तो पढ़ाई की होगी आपने. नाउ essay paper, you understand its importance. Its importance is कि in comparison to any other paper, you can easily score more marks, plus you will require less effort here in essay paper. Essay paper is more about development of certain skills. It is not about collecting the content or the material, because it is a paper which is specifically testing your writing skills. Why students have challenge in this paper? Even today I was looking at certain scripts of the test that we have conducted in essay. There are certain problems which are very basic problems which should not have been there, and that is students not having command over language. Command over language also includes writing. Whatever effort you are doing, but if writing is not good, nobody is going to read it. Means when you prepare for essay paper, you should always have an integrated approach in mind. Preparation of essay paper means you are also improving your marks in your optional, in other papers, because if someone cannot write essay paper, that also implies that person will not be able to write any impressive answers. So gaining marks will require few trivial things to be done from your side, plus some difficult things also need to be done. So always don't underestimate the importance of presentation. Presentation is very important. प्रेजेंटेशन में फर्स्ट थिंग तो आपकी राइटिंग ही आती है. सेकेंड थिंग आपका ऑर्गेनाइजेशन ऑफ योर कंटेंट एंड आइडियाज आता है, जिसमें मैक्सिमम लोगों को बहुत प्रॉब्लम है, ग्रामेटिकल एंड ऑल. अब ये इम्प्रूव कैसे होगी? तो इम्प्रूव करने के लिए, टू इम्प्रूव द राइटिंग यू रिक्वायर मोर रीडिंग. बट the problem is you do not have enough time to do reading in some specific areas. So the best thing is read newspaper, because that will help you in your current affairs preparation also, plus improvement. If you will just study the current affairs magazines which are giving you points, which are not giving you language, data, expression, then you will not be able to develop the skill. Whenever you do something, always think how a particular activity of mine can be used and is helpful in so many areas. इस पर आपको समझ के, क्योंकि लोग ये समझते हैं कि केवल ऐसे पेपर है. मेरे हिसाब से तो ये फाउंडेशनल पेपर है कुछ भी करने के लिए. नाउ
ऐसे पेपर में करना क्या होता है, दूसरी मिस्टेक जो अभी देखी, majority of the students here have been political science students, so they are writing, they are thinking as if essay is a long question of their topic, but that is not the case. So your optional, suppose your optional is philosophy, political science, sociology, these type of optionals should not, matlab, it is a opportunity also, it's a problem also. The problem will when you will start writing all the time according, ठीक है. तो essay is a part of your personality test. When you read an essay, don't try, ensure that it does not look a long answer which you write in your optionals. Another problem in essay is ability to deconstruct the topic. What is the essence of the topic? Challenges, how will you develop the particular topic? And how will you reach to the conclusions? And now if you see the trend of essay paper from factual, they are going into philosophical topics. What is the purpose? Why are they going into philosophical topics? In-depth understanding, abstract thinking. Philosophical topics will require more logical analysis. You can see one trend is common in all paper. That is, whether it is prelims paper, it again require more conceptual understanding, more logical analysis. People say UPSC is unpredictable, but it is where it is unpredictable. If you analyze 5 years paper, you can understand the trend, you can predict the trend, that which type of preparation is going to be helpful. Hence, when you do an essay paper, means you are putting very less effort, but it can, if you compare how much time, how many topics you have to study for your GS2, GS3. GS2 में तो चलो एक ही सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं आप, GS3, GS4 में तो 50 सब्जेक्ट है. कहने को एक सब्जेक्ट के 3 टॉपिक हैं, लेकिन वो सब्जेक्ट अपने आप में ओशन है, हर सब्जेक्ट अपने आप में ओशन है. उसके कंपैरिजन में यहाँ पर, वहां और यहाँ डिफरेंस क्या है? There you need to be well versed with data also, facts also. लेकिन यहाँ पर आप अपने अंदर से you can bring lot of ideas. Another thing is any topic can come. You can never tell which topic will come. तो any topic will come means आपको skill development करना पड़ेगा. Thinking का, logical thinking का, कनेक्शंस का, चीजों को डिकंस्ट्रक्ट करने का, वो एक दिन में नहीं होगा. राइटिंग इज अ प्रोसेस विच टेक्स टाइम. इट विल नॉट हैपन. आप बहुत, मतलब राइटिंग इज समथिंग अल्टीमेटली आप कर पाएंगे, तो एक प्रोसेस के रूप में इसको देखना है. नाउ व्हाट वी हैव सीन, व्हाट आर द प्रोमिनेंट, दो टॉपिक कैन बी एनी एब्स्ट्रैक्ट टॉपिक. और आपको ये भी जरूरी नहीं है कि अगर किसी थिंकर का वो टॉपिक है, मान लो फ्रांसिस बेकन का टॉपिक है आई थिंक देयरफॉर आई एम, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आपको बेकन के अनुसार लिखना है. आपको अपना इंटरप्रिटेशन लिखना है उस टॉपिक के साथ. आपका कितनी देर तक यू कैन डील विद दैट टॉपिक, फॉर हाउ लॉन्ग यू कैन, एंड into what depth and breadth you can think with on that particular topic. Can you prepare a piece on that? तो इसलिए thinking is something that is most helpful, and thinking again
will not happen in isolation. You need brainstorming. हमेशा फिलॉसफी क्या होता है? आर्ग्यूमेंट्स एंड काउंटर आर्ग्यूमेंट. देयर इज नो आर्ग्यूमेंट विच इज एंटायरली करेक्ट, देयर इज नो आर्ग्यूमेंट विच इज एंटायरली रॉन्ग. हमेशा अगर एक आर्ग्यूमेंट दिया गया तो आपको कैपेसिटी डेवलप करनी है टू फाइंड आउट काउंटर आर्ग्यूमेंट्स एंड टू फाइंड आउट आर्ग्यूमेंट्स इन सपोर्ट. और आपको जो भी आर्ग्यूमेंट लगता है, काउंटर आर्ग्यूमेंट्स डज नॉट मीन दैट किसी एरिया का हम काउंटर आर्ग्यूमेंट डज नॉट मीन कि ये एग्जाम्पल वो एग्जाम्पल वो एग्जाम्पल. जैसे लोग समझते हैं एक पर्टिकुलर एग्जाम्पल दिया और कहते हैं ये कॉन्सेप्ट इकोनॉमी में भी अप्लाई करता है, ज्योग्राफी में भी अप्लाई करता है. वो मल्टी डायमेंशनल नहीं हुआ. ठीक है, वो तो अप्लाई करता है. अप्लाई आप उसका एक ही चीज कर रहे हो, अप्लाई करता है, इसमें भी अप्लाई करता है, उसमें भी अप्लाई करता है, इसमें भी अप्लाई करता है. हम 25 इंस्टेंस हमने दिया, लेकिन कुल मिलाकर हमने ये बताया ना उस टॉपिक का रेलेवेंस. ज्योग्राफी में, इकोनॉमी में, एनवायरनमेंट में, क्लाइमेट चेंज, हमने एक ही एंगल, वो एक्चुअली जिसको हम 10 एंगल समझ रहे हैं, दैट इज वन एंगल. वी आर डिस्कसिंग रेलेवेंस. इज दैट क्लियर? तो हमें डेवलप क्या करना है? आर्ग्यूमेंटेशंस. आर्ग्यूमेंट्स क्या है आपके एक पर्टिकुलर लाइन को लेकर के, और ये ब्रेन स्टॉर्मिंग से आएगा, सुन के आएगा, लिख करके आएगा, पढ़ के आएगा. तो क्लास कैसे स्ट्रक्चर है? पहले आई विल डिस्कस सर्टेन टॉपिक्स. कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जिनको हम समझ सकते हैं कि इस पे ट्रेंड है. जैसे वुमेन का टॉपिक पे ट्रेंड है, एजुकेशन पे ट्रेंड है. वुमेन और एजुकेशन सबसे ज्यादा रिपीटेड टॉपिक है. थर्ड फोर्थ रिपीटेड टॉपिक जो है वो टेक्नोलॉजी एंड एनवायरनमेंट है. ये 4 रिपीटेड टॉपिक हो गए. 5th 6th टॉपिक में आप डेमोक्रेसी ले सकते हैं, नेशनल सिक्योरिटी, इस तरीके के टॉपिक्स हैं. लेकिन फिर आप फिलोसफिकल टॉपिक्स हैं, तो फिलोसफिकल टॉपिक्स में फिलोसफी के मेजर ट्रेडिशंस क्या हैं, कौन सी फिलोसफीज अभी ज्यादा बातें की जाती हैं, फिलोसफिकल ट्रेडिशंस. तो एक मान लीजिए फिलोसफी ऑफ टाइम है. फिलोसफी ऑफ टाइम बड़ा इंपॉर्टेंट है. कंसेप्शन ऑफ रियलिटी है, कंसेप्शन ऑफ एग्जिस्टेंस है, एग्जिस्टेंशियलिज्म बहुत इंपॉर्टेंट है. तो इस तरीके के क्वेश्चंस आएंगे. फिर कुछ क्वेश्चंस वैसे होते हैं जो मोटिवेशनल कोट्स पर हैं. हर कोट मोटिवेशनल नहीं है, लेकिन कुछ क्वेश्चंस जैसे मोटिवेशनल कोट्स पे होंगे जिसमें एक पर्टिकुलर वैल्यू पर आपके आइडियाज, करेज हो सकता है. काफी बार रिपीटेड टॉपिक करेज है, काफी बार रिपीटेड टॉपिक ऑनेस्टी है, काफी बार रिपीटेड टॉपिक एडवेंचरिज्म है. तो हमको अगर हम 2 सिलेबस, स्पेशली इसमें जो सबसे ज्यादा पेपर हेल्प कर सकता है आपको वो एथिक्स पेपर है. तो एथिक्स पेपर का ही आपने अगर बेस बना लिया, क्योंकि आप वैल्यूज पढ़ रहे हैं, एथिक्स में आप लाइफ ऑफ ग्रेट पर्सन्स पढ़ रहे हैं, डिफरेंट ट्रेडिशंस पढ़ रहे हैं, तो काफी कुछ पोर्शन एथिक्स पर इम्प्लाई करके आप कर सकते हैं. बाकी अदर पेपर से आपको क्या मिल सकते हैं? लॉट ऑफ एग्जाम्पल्स, थियोरीज मिल सकती हैं और फैक्ट्स मिल सकते हैं. तो कोई अलग से नहीं पढ़ना है आपने, जो जनरल स्टडीज पढ़ा उसी को पढ़ना है, लेकिन कैपेसिटी डेवलप करनी है ऑफ आर्ग्यूमेंटेशन. तो अब ये क्लास कैसे चलेगा? अभी आफ्टर न्यू ईयर द क्लास 15 डेज पर वी विल बी टेकिंग अ क्लास, और क्लास के बाद एक टेस्ट होगा. टेस्ट में 2 questions will be there. You can solve one of the question. प्लस उसमें आपको
एक मॉडल आंसर होगा। मॉडल आंसर के साथ साथ that is more of a basic content, so that you are able to have some reading material. दो तरह के कंटेंट आई विल बी गिविंग। जैसे ये क्लास का फर्स्ट सेशन हो चुका ऑन वुमेन इश्यूज, तो वुमेन इशू में हमने PYQs डिस्कस किए वुमेन इश्यूज से। PYQs के बेसिस पर वी कैन फाइंड आउट कि ये कंटेंट निकाला जा सकता है। इफ स्टूडेंट हैज नॉलेज या कुछ एक बेसिक रिसोर्स हुआ, फ्यू प्रोमिनेंट कोट्स हुए, कुछ डेटा हुआ, अवेयरनेस ऑफ सम लेजिस्लेशंस हुए, कुछ इंटरनेशनल डेवलपमेंट्स हुए, तो कुछ उस टॉपिक को एक्सटेंड करने का एक बेस मिल सकता है। तो इतनी भी प्रोसेस अगर आपने की, कुछ उसके लिए अलग से करिए नहीं, पढ़िए नहीं, पेपर को ही आप केवल करंट अफेयर्स के लिए मत पढ़िए। पेपर से ही आपको यू कैन ब्रिंग वेरिएशन इन योर ऑप्शनल आंसर्स, यू कैन गेट लैंग्वेज फॉर ऑल द पेपर्स। पेपर से मतलब कई चीजें आप उसको उस पर्सपेक्टिव से पढ़ो। इसीलिए आई ऑलवेज से मैगजीन्स के ज्यादा, मैगजीन आप पढ़ सकते हैं, कब पढ़िए? जब प्रीलिम्स का 2 महीना बचता है, जिस समय आपको सिर्फ रिवीजन करना है क्विक, उस समय कैपेसिटी बिल्डिंग का टाइम नहीं है ना, वो टाइम तो प्रैक्टिसिंग का टाइम है। कैपेसिटी बिल्डिंग टाइम इनिशियल लेवल पे होता है। अभी बहुत सारे लोग इंटरव्यू दे रहे हैं, लोगों ने हॉबी लिखी है रीडिंग दिस टाइप ऑफ बुक्स, दैट टाइप ऑफ बुक्स, लेकिन बुक पढ़ी नहीं कोई, हॉबी केवल लिख दी है ये सोच करके कि इससे क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो हॉबीज लिखते समय भी इतनी सिली मिस्टेक्स हैं, लोगों ने बहुत प्रिसाइज कर दिया है। रीडिंग अबाउट फॉरेन पॉलिसी इन इंडो पैसिफिक, उसका मतलब क्या? अगर हम अपने डैफ में ऐसे करके लिख दें रीडिंग अबाउट इंडियाज फॉरेन पॉलिसी इन इंडो पैसिफिक, तो सामने वाला क्या इंप्रेशन लेगा कि आप बहुत अक्लमंद हैं, या क्या? हम जो कुछ भी करते हैं हमें वी शुड नो द पर्पस। व्हाट इंप्रेशन, क्या इंप्रेशन होता कि आप चाह रहे हैं कि आपसे इतने ही एरिया के लिए क्वेश्चन पूछा जाए, और इससे बिल्कुल क्लियर है कि ये आपकी हॉबी है नहीं, आपने क्वेश्चन के लिए वो हॉबी बना दी। आप अगर बुक, तो इसीलिए हम जब हम अपने पॉइंट ऑफ व्यूज को क्वेश्चन नहीं करते हैं और ऐसे ही डार्क में चलते हैं एज्यूम करके, या कोई और क्रॉस क्वेश्चन नहीं करता, तो हम उसके फ्लॉज नहीं समझ पाते हैं। एज अ सिविल सर्वेंट भी आपको आगे क्या करना है? एक पॉलिसी है, यू हैव टू गिव अ रिकमेंडेशन, व्हेन इज दैट पॉसिबल? बहुत सारी तो फ्यूचरिस्टिक पॉलिसी है जिसके कोई फैक्ट्स नहीं है, तो उनके लिए तो आपको लॉजिक एंड लॉजिक अलोन पर ही रिलाई करना पड़ेगा। तो वही स्किल्स, डू यू हैव दैट स्किल और पोटेंशियल टू डू दो? दिस इज व्हाट इज द एम ऑफ यूपीएससी एग्जाम। यूपीएससी एग्जाम इज नॉट लुकिंग हाउ वेल रेड यू आर इन योर ऑप्शनल, या आपको इकोनॉमी कितनी आती है, या आपको ज्योग्राफी कितनी आती है, लेकिन आपको ज्योग्राफी समझने की समझ है कि नहीं? डू यू हैव एन अप्रोच टू नो द थिंग्स? सपोज यू आर बीइंग गिवन सम एब्स्ट्रैक्ट लैंग्वेज, कोई एब्स्ट्रैक्ट कंप्यूटर की लैंग्वेज है, बट डू यू हैव एन अप्रोच टू डीकंस्ट्रक्ट? तो इसलिए बहुत लोग गलती करते हैं कि हम 25 किताब से पढ़ के वो पढ़ेंगे और नोट्स बनाएंगे, इनका मतलब नहीं है इसमें। इट्स वेरी अप्लाइड एग्जाम, वेरी अप्लाइड एक्सपेक्टेशंस एंड अप्रोच इज देयर। इसीलिए द बेस्ट थिंग इज use the newspaper if you can, because I don't think students really have time. Reading paper is not that easy because that itself requires lot of historical background. Plus again, language is something which is a problem, and now so many shortcuts are available because things are there on platter, on from short notes to everything, that
in the process of eating things on platter, we unable to develop the skill to produce it. जब आप स्ट्रगल करते हैं ना पेपर में, इवन इफ आई रीड, आई कैन नॉट से कि मैंने एक आर्टिकल पढ़ा और ऐसा हो जाए कि कोई भी ऐसा वर्ड नहीं है जिसका मीनिंग मुझे ना पता हो, दैट्स नॉट पॉसिबल. बट व्हेन आई एंटर इनटू दैट मीनिंग, देन आई गेट टू नो. तो उसके लिए हैव एन अप्रोच ऑफ एक्सप्लोरेशन. आपको एक्सप्लोर करना पड़ेगा चीजों को. शॉर्टकट अप्रोच इज रिक्वायर्ड बट 3 months बिफोर एग्जाम्स, नॉट इन 7 months. प्लस you don't need to learn and remember the things. You need to understand the things. And most important skill that you have to develop is communication. You understand what other person is saying and you can clearly communicate what you want to say. Plus the choice of words. अब 100 लोग होंगे जिनका अच्छा communication होगा, तो फिर कंपटीशन में क्या आ जाएगा, सेकेंड लेवल पर टेस्टिंग हो जाएगी. योर चॉइस ऑफ वर्ड्स, योर आइडियाज, व्हेन यू स्पीक, यू आर स्पीकिंग योर वैल्यू सिस्टम. व्हेन यू स्पीक और व्हेन यू राइट, you are giving lot of impression about your way of doing things. तो सिर्फ एक वन डायमेंशनल व्यू लेकर के कोई सब्जेक्ट नहीं पढ़ो, ना वन डायमेंशनल व्यू लेके कोई भी काम करो. उसमें बहुत दिमाग चलाइए कि ये चीज़ हम पढ़ रहे हैं तो इसका कहाँ कहाँ कैसे कैसे यूज हो सकता है. फाइन. सो दैट इज गोइंग टू बी द basic thing, and I will also be discussing some papers. जब हम पेपर को यहाँ पर I will analyze after once at other students come, so that you can understand what you should have done and what you should have not done. और ये चीज़ जो स्किल आएगी एक दिन में नहीं आएगी, it has to be continuous. अब आप अपने से लिखेंगे नहीं, because if there is no compulsion, it becomes very, those who write on their own, मतलब जिनकी habit है, some have a habit of writing, some have a habit of diary writing and other things, but in present time I don't see students having a habit of writing because of computers. Even class में भी बहुत लोग टाइप करते रहते हैं, तो वो अच्छा है बट नुकसान है. वो आपको एक दिन में कितना 6 घंटे या 5 घंटे लिखना ही पड़ेगा ना मेंस में, और अभी कंप्यूटर चल रहा है तब वहां उंगली नहीं चलेगी. तो कितना लिखना है, लिखना 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 ही है. लिखने के साथ आप कंप्यूटर पे लिख रहे हो, लेकिन जब आप लिख रहे हो तो देयर आर मेनी अदर फिजियोलॉजिकल, साइकोलॉजिकल थिंग्स आर हैपनिंग इन योर बॉडी विच यू आर मिसिंग. That's why when you are just looking for notes, you are missing many other things. तो इसलिए लोग सोचते हैं शॉर्टकट है, लेकिन शॉर्टकट बड़ा लॉन्ग कट बन जाता है, क्योंकि आपके कहीं बेसिक फ्लॉज मिस हो जाते हैं. अब प्लस जैसे एबिलिटी टू हैव अ सिलेक्शन ऑफ द थिंग्स इज ऑल्सो वेरी डिफिकल्ट. आपकी एज में ठीक है नहीं आएगी, लेकिन अगर नेट पर व्हाट वी सी, हर एक डिस्कशन पर वीडियो है, हर एक मुद्दे पे. जो आप मान लीजिए दाऊद के जहर पे ही बन रहा है यूट्यूब पे यूपीएससी वाले इंस्टीट्यूट से, उसका क्या होने वाला है, और सबसे ज्यादा व्यूज भी आ रहे हैं उस पे. तो देखने वाले भी और बताने वाले भी. तो आपको ये सब सिलेक्शन होना चाहिए कि भाई कौन सी न्यूज, दाऊद मरा कि नहीं मरा, जहर खाया असली नकली, क्या करना है उसका. तो और टाइम सबसे कम है. आपको नहीं पढ़ने के बहुत सारे बहाने मिलते हैं, क्योंकि समय नहीं है, अखबार नहीं पढ़ सकते, लेकिन फालतू काम करने के उसका तो कोई अकाउंटिंग ही नहीं है. वही तो कह रहे हैं, तो उसकी तो कोई अकाउंटिंग ही नहीं है. और आप समझ रहे हैं मेजॉरिटी लोग जब यूपीएससी देते हैं 1-2 महीने बाद मोटिवेशन उनका खत्म हो जाता है. उसके बाद दे स्टार्ट किलिंग देयर टाइम.
वो बस करने के लिए कर रहे हैं, प्रोसेस में टाइम किल है, आपको घर पे जवाब देना है। 6 महीने भाई क्लास जाते थे कि नहीं जाते, उसमें कई लोग होते हैं जो ज्यादा से ही वो आना ही बंद करते हैं कि अब नहीं होगा, लेकिन कई लोग आते हैं लेकिन बस आने के लिए आते हैं, वो इन्वॉल्व नहीं है उस चीज में। तो एग्जाम जब आप करने के लिए करने लगोगे तो रिजल्ट आएगा, लेकिन जब आप काटने के लिए कर रहे हो तो आपको खुद पता है, यू योर सेल्फ नो हाउ ऑनेस्टली यू आर डूइंग वॉट। तो दे मतलब दिस इज समथिंग, या तो आपका गोल ही हो टाइम पास, जो हो सकता है, डिफरेंट पीपल हैव डिफरेंट रीजंस, देयर इज नथिंग रॉन्ग इन टू दैट। लेकिन गलती से अगर यूपीएससी भी है गोल, तो when you don't find interest or demotivated, मतलब you are facing certain problems and certain problems you are not finding a solution, you may not finding a mentor that can help you in that। तो जब चीजें हमारे अनुसार नहीं होती है तो हमारा मन खराब हो जाता है, ठीक है, या हमें ऐसे नहीं मिलता है, तो look for the things which is demotivating you, and if you are genuinely interested, start finding the solutions। there are solutions for every problem, there is no problem for which there is no solution। तो आप मतलब मुझे जेन्युइननेस एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम लगने लग गया अमंग द स्टूडेंट्स। अगर आप पहले भी तो लोग करते थे, पहले तो इतने तरीके के कोर्सेज नहीं होते थे और लोग अच्छा करते थे, अच्छा रिस्पॉन्सेज रहते थे, कि थोड़ा सा सेल्फ हेल्प वाला कंसेप्ट था। तो मेक इट यू डिसाइड अबाउट योर सीरियसनेस एंड व्हाट, ठीक है। सो नाउ डू यू हैव एनी क्वेश्चन ऑन द पेपर? या क्लासेस जो है वो अराउंड हम 1 मंथ में, अभी बिफोर प्रीलिम्स we will be having 2 classes in a month, because process बहुत लंबी है वो। आप पहले उसको क्लास अटेंड करिए, कंटेंट पढ़िए, आंसर लिखिए, इवैल्यूएशन और ये सारी चीजें, बट डेफिनेटली वी विल इंक्रीज मोर नंबर ऑफ क्लासेस आफ्टर प्रीलिम्स। और आई विल इंश्योर कि हर एरिया से आपके, जैसे वुमेन इशू हमने कर लिया, PYQ कर लिए, 2 क्वेश्चन कर लिए, 2 क्वेश्चन के डिस्कशन कर लिए, उतना आपके पास डेवलपमेंट हो जाएगा। तो कम से कम 25-30 एसेज आपके हो जाएंगे। ये एरियाज से ज़्यादा फोकस करेंगे कि आप एब्स्ट्रैक्ट वाले एसेज को करना समझ जाए। और कुछ? तुम सीरियस हो या टाइम कट रहा है? अच्छा, हाँ सीरियस, तुम तो लग रहे हो सीरियस, हंसते रहते हो, टाइम क्यों काट रहे हो? तुम तो इस साल दे नहीं रहे ना। यू हैव अ क्वेश्चन। आपको अपना लैंग्वेज कैसा लगता है? यू आर एबल टू एक्सप्रेस नहीं कर सकते, और ये चीज कब से है? आपने यूपीएससी कब से सोचा? 5-6 महीने से सोचा। तो जो आपको लगी कि ये मेन प्रॉब्लम है, तो उसका सोल्यूशन क्या ढूंढा? 6 महीने काट दिए बिना सोल्यूशन के? तो 6 महीने पहले भी और आप, वो टाइम आएगा वापस। और तब से और आज के टाइम में क्या फर्क है? जब आपने स्टार्ट किया होगा तब आपका मोटिवेशन हायर होगा, और 6 महीने तक अगर कुछ नहीं हो रहा है तो ऑब्वियसली मोटिवेशन, हम बोले चाहे जितना कोई भी, लेकिन वो साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट होता है सबकॉन्शियस माइंड में। तो वही चीज शुरू में बहुत एंथुजियाज्म से लोग करते हैं, लेकिन यही पर्सनैलिटी टेस्ट है। इफ यू कैन मैनेज द एंथुजियाज्म, इफ यू कैन फाइंड solutions for your problems, ultimately as an administrator, what you have to do? You have to provide solutions। आपको solution देना है, आपको policy making में help करना है,
सबसे इंपॉर्टेंट तो क्या है, आपको दूसरे को कॉन्फिडेंस देना है। और अगर हम खुद कॉन्फिडेंस, हमारा खुद का कॉन्फिडेंस शेकन है, तो इसीलिए जिनके कॉन्फिडेंस अच्छे होते हैं तो उनकी राइटिंग भी अच्छी होती है, क्योंकि वो कॉन्फिडेंटली लिखते हैं। आप डुअल माइंड में लिखते हैं तो आप लिखे नहीं लिखने, उससे एक्सप्रेशन पे इफेक्ट पड़ जाता है। तो व्हेन यू आर टेस्टिंग, किसी भी टेस्ट को अगर आप इवेल्युएट करते हैं तो मेरे सामने उस बच्चे का चेहरा आ जाएगा कि उसका दिमाग क्या सोच रहा है उस समय। मैं तो उस पे ज्यादा जाऊंगी बजाय कि उसने क्या लिखा है, क्योंकि सब्जेक्ट मान लो रट लिया, लेकिन उससे मेरे पर्सनल, प्रैक्टिकल, पब्लिक लेवल पे प्रॉब्लम थोड़ी सॉल्व कर लेगा वो। तो you should not invest your time if you think that you are a person where 50%, only 50% probability of success is there. You should only think when you say कि you are a person for with whom 90% probability of success is there, 10% will work it out. लेकिन अगर वो आधे मन से गए, खुद पे कॉन्फिडेंस नहीं, थोड़े मतलब साइकोलॉजिकली दैट इम्पैक्ट्स अ लॉट। यस, पार्डन? पर्सनल आप क्लास के बात कर रहे हैं? हाँ, तो अप्स एंड डाउन्स होता है, यही कुछ लोग अप्स एंड डाउन्स, ये तो आपके ऊपर है ना, अप्स एंड डाउन्स का क्या करना है भाई। ऐसा कौन है जिसकी लाइफ में अप्स एंड डाउन्स ना हो, लेकिन अप्स एंड डाउन्स को आप कैसे हैंडल करेंगे तो आपके ऊपर है। आपका गोल क्या है? आपका गोल है अप्स एंड डाउन्स को, मतलब इफ वी आर फेल्ड, n number of explanations we can give for our failure, but nobody is interested. हम हमेशा दूसरों को क्यों एक्सप्लेनेशन देते हैं ना, हम एक्सप्लेनेशन देते हैं कि हमारे साथ अप्स एंड डाउन्स थे, बट वो पूछ कौन रहा है? तो अप्स एंड डाउन्स को ओवरकम करना आपकी जिम्मेदारी है, ये आपका गोल है, ये आपकी लाइफ है। आपको अपनी लाइफ कैसी बनानी है, आपको ऐसे देखना है कि हमारे साथ वाले काफी आगे चले जाएं, हम वहीं जहां थे वहां भी नहीं, उसके भी पीछे चले जाएं। मान लो हमने इंजीनियरिंग की होती, जॉब कर रहे होते, तो हम कहीं और तो होते, लेकिन हम यहां पहुंच गए कि हम अपने साथ वालों से तो पिछड़ ही गए, हम अपने से भी पिछड़ गए। तो ऐसे करके जी पाओगे? यस, आउटपुट बिकॉज यू डोंट नो व्हाट टू डू, यू डोंट डिस्कस। कोई मतलब अगर आप पॉल साइंस स्टूडेंट होते तो हम बता, आर यू पॉलिटिकल साइंस स्टूडेंट? आपने एलिनेशन पढ़ लिया मार्क्स का? हाँ, तो क्यों है? क्योंकि हम क्राउड में हैं, हम आइसोलेटेड हैं, हम किससे अपनी बात एक्सप्रेस करें और किसके पास हमें हमारी बात को समझ के उसको सॉल्व करे। और कोई सॉल्व कर पाए उसके पास कुछ एक्सपीरियंस भी होना चाहिए। तो अभी क्या है, अगर आप मार्केट में देखें तो नीड पता है, नीड है कि मेंटर होना चाहिए, लेकिन मेंटर है या कोई भी है मेंटर? तो चूंकि स्टूडेंट्स की डिमांड है तो इंस्टीट्यूशंस रख लेंगे मेंटर, लेकिन मेंटर को खुद मेंटर रिंग की जरूरत है, तो वो प्रोसेस है, सोल्यूशन कहाँ है? तो सोल्यूशन हमेशा निकलेंगे जब आप बात करेंगे, you talk it out. During this preparation, it is very important that you need, because without developing a leadership skill, you cannot manage this exam. एग्जाम फिर लीडरशिप स्किल है। आज लोग बहुत सारे इंटरव्यू का प्रिपरेशन कर रहे हैं, लेकिन वो बोल नहीं पा रहे हैं, उनके दिमाग में आइडियाज हैं लेकिन वर्ड्स नहीं है। जब किसी से बात कर रहे हैं तो ब्लैक आउट हो रहा है, एक तो कॉन्शियस है और ऊपर से कभी प्रैक्टिस नहीं है। तो अगर आप खुद ही अमंग फ्रेंड्स आपने ऐसा कोई लीडरशिप रोल किया रहता, 10 लोगों का कोई ग्रुप बनाया रहता, 4 लोगों का ग्रुप बनाया रहता,
उस ग्रुप को डायरेक्शन दी होती कि ये काम करना है, ये डिस्कशन करना है। मतलब देयर हैज टू बी डिफरेंट मोड्स ऑफ लर्निंग. वन मोड ऑफ लर्निंग is not sufficient in present times for this exam. क्यों? Because syllabus is very vast. You can't handle on your own. तो you require, जिसको यूपीएससी में ब्यूरोक्रेसी का खुद एक बड़ा प्रिंसिपल है, एस्पिरेटली कॉप्स. ठीक है, ब्यूरोक्रेसी पढ़ी है जाके मैक्स वेबर की. सबसे इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल है एस्पिरेटली कॉप्स, that how will you work in a team situation. तो सबसे पहली बात तो I will be able to do something only when I know what I want. तो एक जो पर्सनल सेंस होना चाहिए ना गोल में, वो मिसिंग होता है. नंबर ऑफ टाइम्स कितने लोगों को पता है कि कलेक्टर या ये बनने के बाद हमारा ये काम होगा? पता ही नहीं ना. जब तक आपको पता नहीं तब तक आप उस चीज से इन्वॉल्व नहीं ना, आपको उस काम की वैल्यू नहीं पता. तो हम जब कोई चीज कर रहे हैं तो हमारे लिए उस चीज के प्रति बहुत बड़ा मोटिवेशन होना चाहिए. देयर शुड बी समथिंग बिग विच आई शुड सी आई विल अचीव इट इन द एंड. तो जितना आपको क्लैरिटी पहले हो क्या कर लोगे. तुमने ये क्वेश्चन तो करिए आप बेसिक. फ्रांसिस बेकन है, जो भी इंपॉर्टेंट फिलोसफर्स हैं, उसका पहला स्टेटमेंट यही है फेमस, आई थिंक देयरफॉर आई एम. हम तभी वो चीज अचीव कर सकते हैं जब हम उसको सोचें. तो हम कहाँ, हमारा मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स का सारा तरीका गलत है. पहले अगर आपको जाना है ना कलेक्टर बनने, फॉरेन सर्विसेज, आईपीएस, आप जाके ऑब्जर्व करें, बोलें, पूछें करना क्या होता है. सब जब तक वो चीज के लिए आपके अंदर वो जुनून नहीं आएगा ना कि मैं इसके बिना रह नहीं सकता हूं, दिस इज सो इम्पोर्टेंट फॉर मी, दैट इज द ओनली थिंग. क्योंकि इतना डिमांडिंग है, आप मोटिवेशन फॉर एफर्ट लाएंगे कहां से? इफ यू सी इट इज एनी अदर प्रोफेशन, इट इज जस्ट अ मीन्स ऑफ लाइवलीहुड. Even you will not get normal livelihood with this mentality in the age of competition. So you have to have a very strong reason for anything to do. वो रीजन आपको मोटिवेट करता है ना. जैसे वो कौन थे प्रेसिडेंट, सपने वो देखो जो सोने न दे. वो चीज करनी पड़ेगी ना. जो मून पे गया या यहाँ वहां गया, वो सो के आधे मन से तोड़ी गया. So that is to be seen and understood. Yeah. With understanding and ignore anything which is shortcut. Ignore anything which comes to your platter. ऐसी कोई चीज लाइफ में करो ही नहीं जिसमें आराम हो. ठीक है, जहां भी आराम हो वहां भाग जाओ. कष्ट सहना सीखोगे तभी कुछ कर पाओगे. कष्ट सही है. कष्ट क्या होता है? सोना तप के खरा कुंदन बनता है. सोना तो हर अंदर हर इंसान में है, लेकिन आप कष्ट लेते कि नहीं लेते. कष्ट जरूर लो. अगर आपको लगता है कि 4 घंटे हम पढ़ सकते हैं तो 6 घंटे पढ़ो. अपने को चैलेंज करो. जब खुद को चैलेंज कर पाओ तब तो किसी और को कर पाओगे. मतलब आई थिंक विल पावर इज वेरी इंपॉर्टेंट टू डू एनीथिंग. and psychologically lot things, you can't study everything, you cannot control everything other than your mind. Mind is your biggest strength, आपको उसको कंट्रोल करना पड़ेगा. तो अब और ऐसा कोई जो नए लोग हैं उनको कोई क्वेश्चन? यू हैव बीन हियर अर्लियर आल्सो इन द क्लास. यहाँ पे यू वेर इन द क्लास. ओके, अभी ज्वाइन किया है तो फिर मैं क्लास के बाद काफी कुछ बता दूंगी. बाकी कोई क्वेश्चन है ऐसे रिलेटेड?
हाँ, तो वही माइंडसेट, जो भी लिखा है वो लिखा है, मतलब अच्छा नहीं लिख के डिमोटिवेट नहीं होना है। टाइम की वैल्यू करनी है ना, या तो बैठ के रो सकते हैं या फिर उसी समय में कुछ और कर सकते हैं, एंड इट इज गोइंग टू बी अ लर्निंग प्रोसेस। ठीक है, तो नाउ अदर, यू ऑल हैव गिवन द टेस्ट ऑल्सो। आपने टेस्ट दिया? किसी ने नहीं दिया? आपने दिया। आप लिख, व्हाट्स योर नेम? हाँ, वेणुगोपाल। उनको बुलाइए जरा, पुरुषोत्तम को। तो व्हाट आई विल डू फर्स्ट, we will discuss two topics, plus I will discuss two answers also. Fine. And we will see ki what were the mistakes and how these mistakes could have been handled. Fine. So essay preparation is about thinking on any topic that is given. Okay. So one question that was asked in the test was, I don't want women to have power over men, but over themselves. So how will you write answer and what should be the way to write answer? Main, एक वेणु गोपाल, और कोई चाहता है? आपका क्या नाम? इन दोनों की कॉपी निकाल लेना अभी इसके बाद। So how should you write answer? Always it is better, your purpose should be to make the reader comfortable, so that when, let us say, paper writings happen in academics, there is some abstract that is written, or even when constitution is there, then a preamble is written to give you an overview. Fine. So you should always give an overview. Overview means, what do you understand by this theme? Different people may understand theme differently. That is also okay. Interpretations can be subjective. That is why before, it should not be completely wrong. But before writing, if you can introduce that from my perspective, this particular topic is about what? It is about what? Certain connecting words, etc. should, this topic, matlab what is the larger topic here? इस टॉपिक का कौन सा, ये ब्रॉड टॉपिक कौन सा है इसमें? तो दिख रहा है ना इसमें, वो तो देख के ही पता चलता है, थिंक करके। अब यहां पर हमेशा, मतलब पॉइंट्स में फर्स्ट पॉइंट आप क्लू यही रखिए, यू शुड गिव एन ओवरव्यू ऑफ व्हाट यू आर गोइंग टू राइट, so that examiner has a guide that okay, you will be writing, and maybe the overview itself is impressive enough that someone will give you marks, because you know na, first impression is the last impression.
So overview, in this essay I will be discussing this. And what should be your approach? First of, how will you start write? If you will start writing specifically, you will not be able to expand it. Fine. So what is the difference in writing short answers, very short answer, very short answer, very specific, not much language, long answer, more description, very long. Fine. So you need to find a broad theme. Find out the theme in which you will write. Because when you will have a theme, then towards the discussion you can keep it narrowing down and reach to a something more concrete. But if you will start from more concrete, you will end up a situation where you will not have words further, you don't have ideas further. ठीक है? तो अब इसमें 2 की वर्ड्स हैं, बट ये तो बहुत ही सिंपल स्टेटमेंट है. व्हाट इज द ब्रॉड व्यू हियर? Man dominated society and position of women. Now this is such a big statement. Can we present it more clearly, more precisely? Can we be more precise in our words? ब्रॉड व्यू आपने देख लिया, वुमेन एंड मेन. तो ब्रॉड को प्रिसाइज में बोलिए. अभी यू आर स्पीकिंग इन अ डिफ्यूज्ड लैंग्वेज. हाँ, पेट्रियार्कल सोसाइटी, नो. यू जेंडर जस्टिस वर्सेस your ideas are coming. Fine. So far, so many people are very vague in expressing. 2 persons are more precise, where he is saying gender justice and you are saying women empowerment. So do dialectics, which will be much better. More exact क्या है? Women empowerment. ठीक है? Because they are mentioning women. ठीक है? तो I do not want women have power. Women and power, 2 words were there. If somebody would have answered, you should have answered just this question is of women empowerment. This is again, but general. You can talk in terms of gender justice also. Means it depends upon how you will develop a story till women empowerment. Both ways could have been right, because women empowerment can be written in a much. हमेशा सोचो कि I reach to this grand idea. Can that grand idea be further fitted into something more basic idea? Philosophy is searching more deeper and more baser. तो अब मैं ये सोच सकती हूँ कि शायद मुझे आगे उतना नहीं हो, तो इंस्टेड ऑफ वुमेन एम्पावरमेंट आई विल स्टार्ट डिस्कसिंग द जेंडर जस्टिस. तो ट्राई टू फाइंड आउट द बिग पिक्चर. इसके पीछे की बड़ी पिक्चर क्या है. ठीक है? अब जेंडर जस्टिस हो गया. अब जेंडर जस्टिस से ही स्टार्ट करें या और पीछे जाएं? और पीछे कहां जाएंगे? मेल डोमिनेटेड सोसाइटी तो आगे जा रहे हैं, पीछे थोड़ी जा रहे हैं. हमने क्वेश्चन में वुमेन एम्पावरमेंट ढूंढ लिया. वुमेन एम्पावर, अभी हम मतलब ब्रेन स्टॉर्मिंग करेंगे कि वुमेन एम्पावरमेंट से डिस्कस करें या जेंडर जस्टिस से. तो हमको लग रहा है इसका बिगर सर्किल क्या है? जेंडर जस्टिस. तो अब जेंडर जस्टिस की बात किसी से करनी है हमको, तो किसकी बात करें?
I have to come and suppose I have to come and talk to you on justice, gender justice. From where I will start? I will start with justice. ठीक है, तो फिर ये इसका बिगर हो गया, यहां तक जेंडर, अब ये जस्टिस. ठीक है, वाई शुड वी टॉक अबाउट जस्टिस? Justice, because we live in a society and justice is a virtue. Just society is a good society. You need to think like, when you are thinking justice, you should know how to talk about justice and its importance. Is that clear? तो you decide, इसीलिए it is women empowerment, which is a part of gender justice. Gender justice is a part of bigger idea of justice. Justice can be a bigger idea of good life. So what is the main fundamental question? This is how you do philosophy. Going deeper, keep on finding. ये हो गया आपका small picture, big picture, big picture, big picture. Till what I can see the big picture. What is the frame? This is again means putting things in context. Putting things in context and understanding the context. So whenever you see a particular topic, put the topic in context and find out the big picture. You have put this topic in a context of justice. Fine. Now when you put a thing in a context, number of times people say that you can start your answer differently, you can start with some anecdote, you can start in different way, whichever is comfortable. You can start. You can start, suppose if I come and give you a lecture, I can start, have you read a newspaper today? Is there something on a woman wrestler? Fine. Is there some type of discontent? I can start the story and I can say this particular story needs to be understood in a broader context. So I can give a empirical example of the context which I have chosen, or I can go completely philosophical. This is my choice and my style of writing. It can be any such thing. I can have presentation. I can look for some examples of a situation where women may have suffered because of the social system. ठीक है, तो हम एनेक्डोट से, तो आप हमेशा करिए, मतलब ये वर्ड आपका की वर्ड है, व्हाट इज द बिग पिक्चर एंड पुटिंग थिंग्स इन कॉन्टेक्स्ट. ओके, एंड देन स्टार्टिंग. You can have two types of starts. First can be as a narrative start, that is anecdotes, or you can start rationally thinking and exploring the idea. So suppose if I have to narrate so that people can relate, what is the advantage of having an anecdote? What is the advantage of having a narration? हम मान लिए हम जो कुछ करते हैं, इंपॉर्टेंट ये है कि आई शुड नो व्हाई आई एम डूइंग दिस. Just like I gave you one example that one student has written in his hobby. His hobby is reading news related to India in Indo-Pacific. What is that purpose? Purpose is when person read his DAF, they should ask question only from that. But does that sound sensible? No. So
when I am looking for anecdotes or when I am doing anything, I should know why I am looking. There are innumerable examples of women. Which example will I choose? क्या anecdotes आप मान लीजिए इसमें लिखना चाहेंगे? और anecdotes को भी you have to be very selective. आप क्या चीज क्यों सिलेक्ट कर रहे हैं? कौन सा anecdote आप सिलेक्ट करेंगे यहाँ और कितने करेंगे? क्या मतलब कुछ है आपको ऐसे कोई एग्जाम्पल्स हैं आपके पास वेयर वुमेन सफर्ड बिकॉज ऑफ द absence of a just society? Gender disparity, Claudia Williams highlighted recently that in-house women has to work more, like care economy participation in all. I am, लेकिन वो तो वो भी एक तरीका हो सकता है, लेकिन हम आपसे कह रहे हैं कि आप कुछ ऐसे एनेक्डोट्स बताइए. दिस इज नॉट एनेक्डोट. द्रौपदी के साथ हुआ, सीता के साथ हुआ, ठीक है. हाँ, मतलब कुछ भी आप एनेक्डोट बनाइए ना, वेयर अ पर्सन सफर्स अ डिसएडवांटेज बिकॉज ऑफ द जेंडर. पर्टिकुलर करना है ना हमें. स्टोरी बाहर से फिर अंदर जाएंगे. अगर आप नैरेटिव स्टाइल अडॉप्ट करना चाहते हैं तो आप एनेक्डोट लिखिए. You should make people understand the context. I can start this answer writing on justice and its importance, but if you want to write from an anecdote, writing an anecdote and putting the right anecdote means you know the crux of the things. Okay? So you can start with the story of Sita, who was abducted by Ravan because Ravan wanted, जो भी एक normal story है, to marry Sita or to teach lesson to Lakshman. To teach lesson to Lakshman, Sita became a symbol of targeted violence. So even if men have done something wrong, the women have suffered. In Eastern tradition also you can talk about Sita's story, fine, and you can again talk about Sita's story that Sita, there are rules. Nobody was asking about the fidelity of Ram. People were questioning the character of Sita, and Sita had to give tests again and again. This itself shows what it means to be a woman and what are the social norms. Built a story. Similarly, we can put a story of Draupadi. Fine. So Nair woman. What was the breast tax? If you have all these, any story, you can just to show, and you should also appreciate the person who has given a topic. You can appreciate that how relevancy of a topic is also a way to start. Fine. That since then, from Sita to कौन है वो, साक्षी, what's her full name? Sakshi Malik. So the stories remain the same. आप कैसे स्टार्ट कर सकते हैं, आप उसे कैसे ड्रामेटिक कर सकते हैं. एनेक्डोट्स कुछ सोच लीजिए. तो हम क्या कर सकते हैं,
I can say, is the things changing for women? Things are not changing for women. So what I can say, that in case of women, even the very natural laws are getting defied. You can talk about Heraclitus. Heraclitus told, this word is a word of change, but that great philosopher also end up being wrong. He may not wrong in other aspects, but he ends up in being wrong. If we talk about the status of women, East and West, तो you can think in that line. अब हमारा क्या है, हम ये दिखाना चाह रहे हैं वुमेन आर सफरिंग बिकॉज ऑफ देयर स्टेटस. अब सेकंड हम सोच रहे हैं कि इसको कैसे प्रेजेंट किया जाए जो थोड़ा स्टाइल ऑफ एक्सप्रेशन भी शो करे. तो या तो हम डायरेक्टली प्रेजेंट कर दें, लेकिन हमने सोचा कि अच्छा ये तो चीजें बदल नहीं रही एंशियंट टाइम से. हेराक्लाइटस तो कह रहा है कि दिस वर्ड इज अ वर्ड ऑफ चेंज, यू डू नॉट स्टेप in the same water twice. Does that mean this natural law doesn't apply in case of women? Fine. So is it about nature or is it about culture? हाँ, तो ये स्टाइल से बोलिए आप उसको. सुन सुन के अभी आइडिया आया ना आपको. ठीक है, आइडियाज रखिए. अब जैसे अब आया ना, हाँ लिंक कर सकते हैं. हमने कैसे सीखा ऐसे लिंक करके, तो क्या. और नेक्स्ट ये भी है, आप ये जैसे लो, उसको टाइम देना पड़ेगा पहली बात. और तुमको ये सोचना पड़ेगा कैसे आई कैन मेक इट मोर इंटरेस्टिंग. एंड इट्स नॉट दैट यू डोंट हैव इट इनसाइड यू. ये है ना, यू न्यू हेराक्लाइटस. तो पढ़ने के बाद अच्छा आंसर हो जाएगा ऐसे थोड़ी होगा. यू नीड टू थिंक, डू द ब्रेन स्टॉर्मिंग. Fine. And you can write correctly, you can write interestingly, you can write effectively. हाँ, अब यही स्मार्टनेस है कि हमें जो हमारे पास whatever resources I have, am I able to use it or not? I'll build up the story. Let us write this answer in a form of, it can be existential, it can be any theme you can pick up. So now let us start with narration of this issue. So I will say in a sarcastic manner, I can say that the great ancient Greek philosopher held that Greek philosopher Heraclitus held that Heraclitus, Heraclitus held that this world is a word of change. ठीक है, तो मोस्टली स्टूडेंट्स नो हिज कॉमेंट, तो यू जस्ट राइट he held that we can never step twice in the same water. Right? However, one thing fails this philosopher of eminence. ये सीखो किसी के बारे में कैसे बात की जाए. Excellence, eminence, this philosopher of eminence, and that is the status of woman. Right? We can see the uniformity in the social
discrimination or powerlessness of being a woman, comma, if we compare the story of Sita in ancient times या prehistoric times to Sakshi Malik in 21st century, full stop, right? सच, अब इसको सब हम प्रेजेंट कर रहे हैं, स्टाइल सीखे कि एक स्टोरी दे दी लेकिन कहो क्या, कैसे उसको लिखो, लिखो राइट। सच स्टोरीज आर काउंटलेस इन नंबर, in all places and in all times, to the extent the subordination of women has got, right inverted commas में, normalized, has got normalized। जो आप कोई की वर्ड कर रहे हैं उसको इन्वर्टेड कॉमर्स में लिख दीजिए, normalized, that is the part of common sense। So it becomes so difficult even to feel that as if something wrong has happened। Fine, आप लिखो right, hence for anyone looking for creation of या creating a just society, comma, these stories are the learning grounds to understand the various forms of injustices and how and what to be eliminated to end the injustice and to create a society which is just and therefore valuable in itself। ठीक है, अब हमने थोड़ा जेनरल कर दिया, अब हम वुमेन की ही बात करते हैं, स्पेसिफाई करेंगे कि वाई टॉकिंग अबाउट जेंडर इक्वालिटी और वुमेन एम्पावरमेंट बिकम्स इम्पॉर्टेंट। ठीक है, तो अब नेक्स्ट इसको समझो कैसे हम एक्सप्रेस कर रहे हैं, देखो फॉर एनी पर्सन, नेक्स्ट पैराग्राफ, फॉर एनी पर्सन इन क्वेस्ट ऑफ a just social order, comma, the discrimination
against women and its normalization is a obvious concern. Why it is a obvious concern? Comma लिखो. Considering women constitute half of the human race. Half of the human race. Next paragraph. How can any society claims itself to be just, moral, ethical, if half of the population does not have the similar life chances, comma, at par with the other half. जैसे बता सकते हो हाउ सीरियस इज द क्वेश्चन. ठीक है, अब हम ये बता सकते हैं कि there can be discriminations on various grounds between men and men, but when we talk about men and women, the discrimination is not just social and economic ground, but it's a very fundamental nature of inequality. ठीक है, तो हम वुमेन वाले को थोड़ा और डिस्कस कर. हाँ, हम तो आइडेंटिफाई कर पा रहे हैं, पॉलिसी मेकर नहीं कर पा रहे हैं. हाँ, आइडेंटिफाई तो करा गया है, बट एक्शन आर शॉर्ट ऑफ द वर्ड्स. आपको ये सब देने पड़ेंगे ना, रीजंस क्यों ऐसा है. अभी तो हम कह रहे हैं बस आप ये सीखे एक ही लाइन को, कितने पन्ने में यही लाइन एक ऐसे बन जाएगा. आप कैसे वो स्टोरी बिल्ड करना, मतलब जैसे पिक्चर लिखते हैं ना, तो पिक्चर में स्क्रिप्ट राइटर होता है, वो आइडियाज को स्क्रिप्ट बना देता है ना उसको. तो ऐसे आपको स्क्रिप्ट लिखिए, राइट एंड थिंक योरसेल्फ, नॉट राइटिंग एनी सब्जेक्ट, डिस्कसिंग एंड डेवलपिंग अ स्टोरी. ओके, देखो कंपेयर आप हमेशा अभी ऐसे नहीं कर सकते. व्हेन टू कंपेयर इज इंपॉर्टेंट. if you want to say that civilized, so called civilized societies are less egalitarian, then you compare. You should know. That is why whenever I write or I discuss, I don't think beforehand. I pick up one topic and then I feel after discussing this should come, I start. That's why आप पहले से नहीं करिए, ब्रॉड आइडिया नहीं, फ्लो में जाना है. तो इस बात के बाद और क्या कहा जाए, सो दैट दिस थिंग बिकम्स मोर क्लियर, मोर प्रिसाइज. इसलिए पहले से सोच के ऐसे नहीं करो हम ये लिखेंगे जाके. ठीक है, आप एक ग्रैंड आइडिया आपने पकड़ लिया, जेंडर एम्पावरमेंट, उसको कैसे बताएंगे, बताते बताते खुद आपको लगेगा कि अब ये बताओ, अब ये बताओ, अब ये बताओ, जिससे आपका फ्लो आएगा. लेकिन अगर हम पहले से ये सोच के जाएंगे 5 पॉइंट ये, 3 पॉइंट ये, 2 पॉइंट ये, 3-5 करो ही ना, तो वही तो हम बता रहे हैं आप क्यों फंसते हैं, क्योंकि आप लोग करते हैं 3-5,
है ना, आपको शॉर्टकट सिखाए गए। ये चीजें स्कूल के बच्चों को लगती हैं कि भाई उनको मार्क्स देके खत्म करना है, उनको तो उनकी पर्सनालिटी वो थीम नहीं होता ना उनको पढ़ाने का। लेकिन आपको इसीलिए कह रहे हैं बेसिक व्हाट प्लेटो इज फर्स्ट फिलोसफर, उसी ने बताया फिलोसफी कैसे करनी है। अमंग द वेरिएशन look for what is foundational, what is essence, pick up. I said I will talk on this, then I remember I was talking about Sita, I remember Sakshi, then what is it, what is my observation, things have not changed, right? So your writing will guide you what to write next. If you are a natural writer, and anyone can be a natural writer, we all are storytellers, subject to the condition we leave ourselves free with the confidence. Let your idea guide you. Previous paragraph should guide the next paragraph, then flow will come. Why do you want to do anything? Writing should be effortless, not with effort. Effort should not be, it should be very, मतलब कैसे, बहुत कंफर्टेबल होना चाहिए लिखना। नेचुरल तब होगा जब आप पहले से सोच के ना लिखें, पहले से आप दिखाने का प्रयास ना करें। आपका प्रीवियस पैराग्राफ शुड गाइड यू व्हाट शुड बी योर नेक्स्ट पैराग्राफ। इसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं पुटिंग थिंग्स इन प्लेस। अभी क्या था? पुटिंग थिंग्स इन पर्सपेक्टिव। अब पुटिंग थिंग्स इन अ प्लेस। आइडिया आ रहे हैं, आप कुछ और सोचने लग रहे हो, ये पॉइंट हम कैसे लिखें। आप वही पॉइंट लिखिए जिसकी जरूरत पड़ रही, बहुत सारी चीजें छोड़ दीजिए। वहां पे पहुंचिए जब आप कहाँ पहुंचेंगे उस पॉइंट पर, व्हेन यू विल डिस्कस द रीजंस, उस पे आप जा सकते हैं, कंपैरिजन पे जा सकते हैं। इसीलिए पहले गलती करिए, गलती से सीखिए। पहले से अगर आप ये माइंडसेट है कि हम गलती ही ना करें, आप जब ये सोचेंगे ना गलती ना हो तब तो जरूर होगी। ये आपको ये तो सब थोड़ा बहुत समझ में आ जाना चाहिए ना, हो गया, अब ये दूसरे चीजों में जाओ। गलती करो, बहुत गलतियां करो, तब जाके सीखोगे। है? जब जानते हैं कि गलती होने वाला है क्यों करें। हाँ, तो वो ना करें, दूसरी गलती करें, वो वाली तो सॉल्व हो गई। तो गलती होने के बाद अगर ये रियलाइज हो गया कि गलती है, तो फिर गलती थोड़ी, क्योंकि आप पहले से ही सिक्योरिटी में रहना चाहते हैं, गलती हो ही नहीं। जब गलती हो ही नहीं तो आप हमेशा बहुत संभल संभल के पाँव रखेंगे। संभल संभल के रखेंगे तो मतलब जितनी स्पीड में आप दौड़ सकते हैं आप उतनी में थोड़ी दौड़ेंगे। आप तो वैसे ही यू विल बी रेस्ट्रिक्टिंग योरसेल्फ। तो जब इंसान बचाता है तो उससे ज्यादा वो खोता है, और वही जब इंसान इन्वेस्ट करता है तो उससे ज्यादा पाता है। आप बचा बचा के जाएंगे तो बचते बचाते जाएंगे ना, बचते बचाते जाएंगे तो आप अपने आप को, जो अपने आप को सिक्योर करेगा वो बड़ा काम नहीं कर सकता है। डर किस चीज का है भाई? ऐसे भी फेल हो गए, वैसे भी फेल हो गए, तुम्हारे खुद के भी तो तरीके से फेल ही हो गए, तो उससे थोड़ी पास होने वाले हो। यस, तो आगे तो लिखो पहले मेन आइडिया। कहाँ पहुंचे हम लास्ट? हम किस पे वर्क करा रहे हैं? क्योंकि लोग जो हैं उनके पास वर्ड्स नहीं होते, लैंग्वेज नहीं होता, उसको आप डेवलप कर सकते हैं। ठीक है, तो हमने क्या लिखा है? जस्ट more than critical हाँ, half of the population.
रिमेन, मतलब ये है क्वेश्चन, ठीक है। सो नाउ वी हैव टू टॉक अबाउट द एम्पावरमेंट ऑफ वुमेन। अब पहले सोचा था जस्टिस पे करेंगे, लेकिन चलो अब हम इतना लंबा हो गया, वुमेन पे ही आज आ गए डायरेक्टली। वी कैन टॉक ऑन दैट टॉपिक ऑल्सो, देयर कैन बी एन नंबर ऑफ स्टाइल्स। सो नाउ लेट अस टॉक अबाउट द एम्पावरमेंट ऑफ वुमेन एंड इट इज important. What gives its importance? So you need to now talk about अब हमें नेक्स्ट सोचना है। अब इसमें हमने ये सोच लिया कि आई हैव written enough to give an idea that I have understood the perspective. Now women empowerment is a issue or discrimination against women is a problem. How will now I will start finding the dimensions. Now start finding the dimension in which you will be writing women empowerment. तो डायमेंशन क्या है? पहला डायमेंशन है why to empower, ठीक है। what are the reasons, when, where, why, how, कुछ भी लीजिए। what are the reasons behind such situation, मतलब what is the cause, what is the rationale, गोल क्यों है ये गोल, उसका कॉज क्या है, ठीक है। एंड व्हाट कैन बी डन एंड हाउ टू प्रोसीड फॉर इट। तो ऐसे एक मेंटल मैप बनाया कि अब हम नेक्स्ट इस चीज पे डिस्कस करना चालू करें कि what is the rationale to empower women. How will I think about the rationale to empower women? आप कैसे सोचेंगे? अच्छा, इससे पहले एक हम कोट बताना चाह रहे थे, वो लिख सकते हैं, जब लिखिए। इसमें लिख सकते हैं the famous Hindi poet Jai Shankar Prasad has expressed the status of woman in the following words. You know that, स्कूल में पढ़ा होगा। अबला जीवन हाय तुम्हारी यही कहानी, आंचल में दूध आंखों में पानी, समथिंग लाइक दैट, ठीक है। तो आप लिख सकते हैं एक्सप्रेस्ड दैट डैश करके, साउथ वालों के लिख देते हैं अबला जीवन हाय वुमेन लाइफ हैव दिस स्टोरी, अबला जीवन हाय तुम्हारी यही कहानी। इतना भी बहुत है, मतलब बिकॉज पीपल विल अंडरस्टैंड, ठीक है। और उसमें नीचे फिर इंग्लिश में आप लिख दीजिए शोइंग द डिस्क्रिमिनेशन और डिसएडवांटेजेस फेस्ड बाय वुमेन। और उसको भी अब इसी लाइन को कैसे, यू कैन से दैट द सेकेंड लाइन इज वेरी इफेक्टिव विच शोज
आंचल में है दूध means you are sustaining the life on this earth and you are deprived from the basic rights. आंचल में है दूध और आंखों में पानी. So you can not just write the quote, write explanation. ठीक है, तो इसमें लिख सकते हैं these 4 lines show the paradox of the life of woman, that despite being a mother, giving birth to the child, thus sustaining the human race, making extreme sacrifices, bearing pain, yet itself suffering from the lack of very basic rights. अब very basic right को I will expand. ठीक है, what very basic right women are suffering? अरे इक्वालिटी छोड़ो, राइट टू लाइफ, मिसिंग वुमेन, डिग्निटी तो बाद में, यार जीवन के पर्चा नहीं चल रही. वेरी हरियाणा क्या सभी जगह हरियाणा के पीछे क्यों पड़े हो. ठीक है चलो, हाँ वही सब, वही तो सोचो ना, कितना ड्रामेटाइज कर सकते हैं आप, कितना इमोशनल कर सकते हैं. करे तो पहले सोच के नहीं चलना है, थीम सोच के चला जाता है, उसके बाद अपने आप जहां खत्म होता है द वेरी बेसिक राइट. अब बेसिक पे लेंगे तो अब हम क्या लिख सकते हैं? राइट टू सर्वाइवल, द कंसेप्ट ऑफ मिसिंग वुमेन. लेकिन अब इस पहले सोचा क्या लिखना है. सेकेंड इज हाउ टू राइट ड्रामेटिकली, कैसे लिखेंगे मिसिंग वुमेन. ठीक है, तो लिखो राइट, perhaps no aware citizen, perhaps no aware citizen is unaware या conscious, is unaware of this brutal fact, that is the concept of missing woman. अब ये सब हमने एडजेक्टिव खुद ऐड कर दिए, ब्रूटल फैक्ट वैक्ट ऐसे भी लिख सकते थे, लेकिन उसको थोड़ा मेलो ड्रामेटिक बनाइए. ब्रूटल फैक्ट एडजेक्टिव का यूज करिए. ठीक है, क्या लिखा है लास्ट? मिसिंग वुमेन पॉपुलराइज्ड by Nobel laureate Amartya Sen, which points towards the adverse sex ratio
despite a proven fact that survivability of girl child is higher than the male child. Right? We can also give reference to the work of उनका नाम ही हम भूल जाते हैं, मैं शायद ये वाली नोबेल प्राइज वाली, इसका तुम बताए थे। हाँ, क्लॉडिया गोल्डन है ना, गोल्डन, who has shown the declining participation of women in the workforce, full stop लिखे, the work assumes importance because economic empowerment या इकोनॉमिक डेप्रिवेशन लिख देते हैं, इकोनॉमिक डेप्रिवेशन is a indicator for multiple deprivations. ठीक है, तो एक और सिनेरियो हमने डिस्कस कर दिया, फ्रॉम पोएट्री टू इकोनॉमी एंड ऑल दीज थिंग्स। ठीक है, अब लिखो, राइट, empowerment of women is not just about women, it is a public good. तो क्यों एम्पावर होना चाहिए, हम उसके बारे में कैसे सोच सकते हैं, ये पब्लिक गुड है। ठीक है, अब लिखो, राइट, नीडलेस टू मेंशन, नीडलेस लिखो लेकिन मेंशन जरूर करो। ठीक है, नीडलेस टू मेंशन हाँ वही तो कह रहे हैं, लेकिन वो कहेगा नीडलेस है तो मेंशन क्यों कर रहे हो। किसने कहा है यू टीच अ वुमेन यू टीच अ नेशन, अम्बेडकर आई थिंक। हाँ क्या नहीं, मतलब शायद विवेकानंद ने बोला है ना, वुमेन। हु सेड, मलाला यूसुफजई, आई डोंट नो। You teach a man, you teach a person, but you teach a woman, you teach generation. हाँ, मतलब ऐसे कर सकते हो, नीडलेस टू से, अभी एज्यूम करके चलते हैं, दैट अम्बेडकर, द आर्किटेक्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, held that, अभी हम थोड़ा जेनरिक ही लिख ले रहे हैं, वो देख लेना, empowerment of women is empowerment of the nation. ठीक है, लिखो, in his vision of social and economic democracy, empowerment of the woman has been at the center
and one of his earliest actions as the first law minister was the Hindu Code Bill, aiming to reform the status of women through legal and institutional measures. अभी हमें ये सोचना है कि कैसे कैसे वुमेन एम्पावरमेंट इज प्राइमरी एंड इज ऑल्सो एसेंशियल फॉर वेरियस अदर थिंग्स. ठीक है, तो ऐसी चीजें हम क्या जानते हैं? व्हाट डू वी नो? दैट एम्पावरिंग अ वुमेन is not just empowering a woman, it is changing a society. Fine. So what do you know about all these things? You can talk about sustainable development goal, agenda 21. ठीक है, तो you can say that, right? Economists, ecologists, yeah, environmentalists, policy makers have all acknowledged the centrality of women empowerment in addressing the prominent challenges of our times. Right? Noted economist Mehboob ul Haq, Mehboob ul Haq, HAQ, held that if we will not engender the development comma, development will remain endangered. Right? Women empowerment is at the center of the strategy of sustainable development and inclusive growth. Right? We can neither achieve the goal of protection of environment nor alleviation of poverty, goal of protection of environment nor alleviation of poverty without empowering women. अब और कैसे हम इसको वैल्यू दे सकते हैं? पावर्टी एलिविएशन में वुमेन को सेंट्रल रखना पड़ेगा, हाफ ऑफ द रेस है. तो अगर पावर्टी ही एलिविएट नहीं हुई तो एब्सेंस ऑफ
there are studies that women, they, if you give employment, they will take better care of their family and all. But if poverty and climate change is not protected or stopped, is it not going to give rise some other problems like terrorism, migration? So what other problems are linked? We can't even, वो इनरोल नहीं, लेकिन अगर हमने हमने बात करा, यू वांट टू address the poverty, then empower the woman. Then to make the issue all the more serious, we can talk what can happen if you don't address the poverty. This can lead to many social problems. It can lead to many legal problems. After all, the roots of terrorism, insurgency is in this. It means it's a high time that empowerment of women should not be recognized simply as for the benefit of women, but for its spin-off effects for the different walks of life. Is that clear? ठीक है, अब इसमें हम क्या कर रहे हैं, उस चीज का और सीरियसनेस को शो करने की कोशिश कर रहे हैं. सो फाइनली आई मे थिंक दैट नाउ इट इज इनफ टू एस्टैब्लिश व्हाई शुड आई थिंक वुमेन नीड्स टू बी एम्पावर्ड. इसमें बहुत सारे पुराने वाले बच्चे भी, उनको दिया होगा, पहले वाले भी हैं, नए वालों को दे. क्या लिखा है लास्ट लाइन? ठीक है, आप इसी में लिख सक रहे हो कि राइट, वी कैन गिव लॉट मेनी आर्ग्यूमेंट्स, वी कैन गिव, दो मत लेकिन लिख दो, लॉट मेनी आर्ग्यूमेंट्स टू एस्टैब्लिश व्हाई एम्पावरमेंट ऑफ वुमेन. अच्छा ये क्या है, कुछ और मुझे नोट्स दे रहे थे, ये दे दो. वाई, वो तो सबको दे दो. वाई एम्पावरमेंट ऑफ वुमेन इज अ पब्लिक गुड विथ मल्टीपल स्पिन ऑफ इफेक्ट्स. बाद में दे देना जाते समय, स्पिन ऑफ इफेक्ट्स, स्पिन ऑफ इफेक्ट्स है ना इसके. अब टाइम है टू अंडरस्टैंड व्हाट इज द रीजन, व्हाट शुड बी डन, व्हाट हैज बीन डन. इस पर डिस्कस करने लग जाओ. ठीक है, तो अब नेक्स्ट पैराग्राफ क्या है? राइट राइट, हेंस इट इज एसेंशियल टू हैव a proper understanding of the cause behind the discrimination against women, so that appropriate steps are taken to deal with the problem. Now, what are the causes for this situation of women? Women themselves are not conscious, or लैक ऑफ अवेयरनेस किसमें, और बाकी सब सही. सोसाइटी में क्या है, बस यही प्रॉब्लम, और क्या प्रॉब्लम? वुमेन की स्थिति खराब है. व्हाट इज द प्रॉब्लम? व्हाट इज द प्रॉब्लम यू हैव अंडरस्टूड? हाँ,
तो फैमिली इज अ प्रॉब्लम. तो मदर तो सिखाते हैं, लेकिन मदर को पीछे से पिताजी सिखाते हैं. इसको ये बोलो. वही तो उनकी पॉलिटिक्स है. सिनेमा इज अ प्रॉब्लम. मेरा पति देवता है. सिनेमा. You have felt any discrimination ever? You have never faced any problem as a woman? Not in family, outside family. What discrimination? When you felt that you are suffering because of being woman? Now you are remembering. Haryana, you are from Haryana. Okay. The thing is, it is so normalized that even women will take time to remember or to just recollect, because we all have become so insensitive to that, and because everybody has accepted it's a part of life, means लगता है जैसे मैं अपने गांव की बात करूं, मतलब लगता है जैसे अगर कोई किसी वायलेंस नहीं कर रहा है तो बड़ा एहसान कर रहा है उसके ऊपर, वो खुद को ऐसा फील होता है. करेक्ट. अगर मैं बात करता हूं उनसे तो मतलब कहते हैं कि इतने अच्छे हैं कि मेरे ऊपर कभी हाथ नहीं उठाया. करेक्ट. कॉमन है. ठीक है. अच्छा, जब भी हमें बात करनी है प्रॉब्लम की तो थोड़ा अच्छा डिसेंटली से बात करनी पड़ेगी. मतलब क्या है वुमेन का प्रॉब्लम, तो आपको ऐसे थोड़े पढ़े लिखे लोगों की तरह बात करिए कि देयर आर डिफरेंट थ्योरीज, डिफरेंट पर्सपेक्टिव्स. द मोस्ट जनरल पर्सपेक्टिव इज known as biological determinism. Women are seen to be the weaker sex. Though, like this idea was for the first time given by Sigmund Freud. Fine. Sigmund Freud's slogan was "Anatomy is destiny." Fine. Then the theories range that it is not natural, it is cultural, because we live in a gendered society, patriarchal society. Fine. So there are theories. In fact, there are theories for you can always say that, अब इसको dramatize कर दीजिए, there is no dearth of the theories across the disciplines explaining the reason. If you look into theory, if you look into religion, religion has its own explanation. The original sin theory is there. If you see psychology, like Sigmund Freud has an explanation in anatomy. If you look into the radical feminists, they may say culture is a problem. Some may say law is a problem, and so on. So broadly, we can say that it is less to do with nature. It is more to do with culture. The natural theories appear to be more acceptable because the subordination appears to be so normal that it starts appearing natural. तो हमेशा ऐसी चीजें जो एक सोशल प्रॉब्लम्स हैं, तो कोई हम ही लोग थोड़ी है जो उसके ऊपर डिस्कस कर रहे होंगे, हर डिसिप्लिन में होगा. तो आप ये लैंग्वेज सीखिए कि एज फार एज empower lack, we are not the one to discover now the empowerment of women is missing because of this. So there is no lack of dearth of the
theories, explanations, discoveries. This is one such area where lot of research has happened, including lot of empirical research in tribal societies. You talk about anthropology, sociology, economy, law. Hardly there is any area of human knowledge which has not dealt with the question. Is that clear? इंडिया में कब से शुरू हुआ तो वो तो सब हिस्ट्री की बात है. हमें आई शुड नो हाउ टू टेल अबाउट समथिंग रादर देन फाइंड आउट कब शुरू हुआ कैसे. ये नहीं देना है. आपके पास इतना भी समय थोड़ी है ऐसे में कि आप सारा चीज लिखेंगे. अप्रोच लिखिए. हमें बताना है. फॉर मी द चैलेंज इज आई हैव सेड व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट टू एम्पावर वुमेन. उस पर कुछ 2-3 चीजें लिख दी. अब यह है कि भाई एम्पावर कैसे करेंगे, तो पहले कॉज पता हो. तो कॉज पता करने के लिए हम थोड़ी जा रहे हैं डिस्कवरी में. ऑलरेडी एक इतना वेल रिसर्च एरिया है. तो हर थ्योरी, कोई सब्जेक्ट उठा लीजिए उसमें मिल जाएगा आपको. यूपीएससी कोई पेपर किसी साल का उठा लीजिए, उसमें वुमेन एम्पावरमेंट होगा. तो समझ तो है. इसलिए अब हम ये बताएंगे देयर इज नो डेप्थ ऑफ थ्योरी, बट broadly the main debate is nature versus culture. Fine. Who nurtures the culture? The civil society, the intellectuals, the dominant class, the dominant group. Real problem is in the mind. Problem is always in the mind. Those who are unable to write an essay, their problem is mind. ये सब मेंटल प्रॉब्लम है, नॉलेज प्रॉब्लम थोड़ी. जैसे इन्होंने बताया डर डर के लिखते हैं. हाँ, तो मतलब तुम कोई अलग थोड़ी हो. ठीक है, सब एक ही है. Everything is, this is a theory, everything is in the mind. Everyone has a mental problem. That mind is God. Mind से तो निकालना है. दिमागी, इसका सिंपल हिंदी में बोलेंगे दिमागी फितूर है. फितूर ही तो है ना. फितूर हटाइए. बट फितूर हटाना, किसी को किसी का फितूर हो जाता है, आसान होता है? नहीं होता ना. फितूर है तो फितूर ही बना है. तो आप नेचुरल होगा तो आप चेंज नहीं कर सकते. कल्चरल है तो मैन मेड है, इजी टू चेंज है, बट नेचुरल है ही नहीं. ठीक है, तो इट इज कल्चरल बिकॉज नेचुरल थ्योरीज शो समथिंग एल्स. yet it is appearing natural because it is so universal. ये सब लिख के अब आगे बढ़ो, सोल्यूशन भी तो दो. चलो लिखो ना. हमने कहा लेकिन लिखने का कभी कलम तो उठाया लाइफ में? कलम उठाने से पहले लैपटॉप उठा लिया. उठाइए, कलम के सिपाही बनिए. हाँ, वही सब जब लिटरेचर आप पढ़ते हैं तब आप इंसान बनते हैं. लिटरेचर पढ़िए, कलम के सिपाही बनिए. कैसे लोगों ने लिखा है, ऑब्जर्व किया है. उसी गांव में रह के तुम कुछ नहीं बने, उसी गांव में रह के मुंशी प्रेमचंद बन गए. फिर उनकी कविता ना मालूम तुम्हें? शर्म करो. कहाँ से है वो? अच्छा बताओ. हमारा जबकि संबंध है तब भी हम जानते हैं जयप्रकाश नारायण. चलो, लिटरेचर में रुचि होनी चाहिए वैसे. एनीवे, आगे बढ़िए. चलिए जल्दी लिखिए. अब हम क्या डिस्कस करने वाले हैं? कॉजेस. तो कॉजेस, हर चीज जो बहुत बड़ी है मतलब उसको थोड़ा छोटा कर दो या ऐसे कुछ स्टाइल डाल दो. तो लिखो देयर इज नो डर्थ, DEARTH, और स्कर्सिटी ऑफ द लिटरेचर और थियरीज on the causes behind the subordination of women.
देखो, हार्डली देयर इज एनी डिसिप्लिन. फ्रॉम बायोलॉजी टू एंथ्रोपोलॉजी, एनी डिसिप्लिन. तो हमारी खुद की किताब बन जाएगी सब लिखेंगे. फ्रॉम बायोलॉजी टू एंथ्रोपोलॉजी, फ्रॉम philosophy to psychology, from theory of politics to theory of economics, right? Right. Thus, it has been an area of a concern since long time back and across disciplines. Right. Right. The review of these ideas take us to the two major debates, that is nature versus culture. Right? Those who think एरो करके लिखो, anatomy is destiny, anatomy is destiny, ब्रैकेट में लिखो सिगमंड फ्रॉइड. To those who think one is not born woman, one becomes woman. One is not born woman, one becomes woman. ये सिगमंड फ्रॉइड के अगेंस्ट बोला गया स्टेटमेंट है. सिमोन डी ब्यूवो. अब लिखो, देयर आर इनफ एविडेंसेस टू चैलेंज biological determinism and to support that it is not nature but culture which is the root cause. अब थोड़ा कल्चर के बारे में लिखेंगे. व्हाट इज कल्चर? अ वे ऑफ लाइफ. ठीक है, आप लिखो, राइट, सिंस कल्चर इज अ वे ऑफ लाइफ, which constitute values, norms, ideas, practices, comma, it can be said that there is a need to change the culture
full stop, लिख write the social culture which is not inclusive, comma, which is discriminatory in nature, comma, which undermines human dignity. अब इसी से प्रॉब्लम होगी चेंज में, लिखिए सिंस कल्चर इज डीप रूटेड despite being human creation, it is not always easy to change the culture. That is the mindset. Full stop, right? Perhaps that may be the reason that despite so many efforts at so many levels, for example, UN has dedicated a decade for empowerment of women. There is a dedicated institution that is UN Women. Countries have signed convention to eliminate discrimination, eliminate all forms of discrimination against women. CEDAW ब्रैकेट में लिख दो. Comma, national level initiatives. CEDAW, CE, Convention on Elimination of Discrimination Against Women. Next, national level initiatives. For example, if we talk about India, introduction of gender perspective in planning, comma, gender-based budgeting, gender sensitization measures, dedicated ministry, programs like बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ, full stop, फिर लिखो plethora of civil society organizations,
voluntary actions, yet it seems, क्या दिखता है आपको? हाँ, yet it seems, इसको ड्रामेटिकली बोलिए, yet it seems that the problem is so enormous even much is too less. बहुत भी बहुत कम है. जो आता जाए वो लिखते जाओ. आपको थीसिस नहीं लिखनी है, आपको ऐसे लिखना है. ऐसे इन हिंदी इज निबंध. निबंध मीन्स बंध. बंध नहीं, निबंध मतलब बंधन में जोड़ के, बंधन, निटिंग द आइडियाज. तो सोच के नहीं लिखो ना, दिल से लिखो. अब हम डिफरेंट एरियाज टच करते जा रहे हैं ना. हम हर चीज लिखेंगे तो आंसर अच्छा होगा, ऐसे थोड़ी. हर एरियाज लिखिए. आप हर चीज थोड़ी 10,000 वर्ड्स में लिख लेंगे, सॉरी 1,000 में. हर चीज नहीं लिख पाएंगे ना. 10,000 का तो वो होता है ना एमफिल का थीसिस. तो इसलिए कुछ लिखने की कोशिश नहीं करो, जो आता जाए वो लिखते जाइए. क्योंकि जब आप लिखने की कोशिश करेंगे, या तो वो आ रहा होगा तो नेचुरली फिट हो जाएगा, और नहीं आ रहा होगा तो फिर वो थॉट को ब्रेक कर देगा. हाँ, तो लीव योर सेल्फ फ्री एंड राइट. ठीक है. तो एरियाज सेलेक्ट करते गए ना, तो अब हमने इंपॉर्टेंस बता दी, अब हमने थोड़े एफर्ट्स बता दिए, फिर एफर्ट्स पर अपना विचार बता दिया कि भाई यहाँ पे मच भी लेस है. वो तो एक लैंग्वेज का प्रयोग कर दिया. दिस इज वन दैट्स मच मोर इज रिक्वायर्ड. फिर हम कह सकते हैं कि it doesn't means that things have not changed, but lots needs to be changed. ठीक है. तो इसमें लिख सकते हैं नेक्स्ट पैराग्राफ, राइट, it can surely be said, एक हिस्टोरिकल और वो पर्सपेक्टिव टाइमली भी लो. it can surely be said that situations have changed, these efforts have brought positive results, comma, today women are venturing into uncharted territories, including becoming the fighter pilots or the CEO of companies holding the positions of power right, is still much is to be done. फिर एक और लिखो, it is also essential to mention that there are many such things which also create a
threatening prospects. For example, right, the wars have a potential to roll back the process. The rise of fundamentalism, pandemics. Studies show that corona crisis has increased the instances of violence and marginalization of women. Hence, the serious challenges that we have not overcome the past problems and we are yet not prepared to tackle the future challenge. ठीक है, अब है वे फॉरवर्ड बताना है. वे फॉरवर्ड बताने का फिर ड्रामेटिक तरीका सीखो. हाँ, मतलब वो तो आंसर्स हो गए कि क्या करना है. You have to change, continue these efforts. You need more money, you need more resources, you need more research, you need more data, more awareness. जनरल लिख दीजिए. तो लेकिन इस बात को कहें कैसे? ऐसे कहिए कि दिल पे वार कर दे, एकदम दुखी कर दे, है ना? क्या वो लास्ट में आएगा. चलिए अब लिखिए, ये लिखिए, देखो, टुडे राइट, we are at the crossroads, yeah, humanity at the crossroads of great transitions. Hence, it is essential that we take credible and effective actions. ओबामा से कम स्पीच नहीं हमारी है, बस यहाँ फंस गए यूपीएससी के चक्कर में. वही तो कह रही, यही राष्ट्रपति बनना भी नहीं हमको, अपना हमको लोकसभा तक में नहीं बैठना है. राज्यसभा बहुत छोटा लग रहा है मेरे को. बोल, चलो, ये सब शब्दों का खेल है दुनिया. लाइफ शब्दों को सीख लीजिए. क्रेडिबल एक्शन, इफेक्टिव एक्शन, ठीक है. बस इसी में लोग इमोशनल हो जाते हैं. ठीक है ना? लैंग्वेज इम्पैक्ट्स थिंकिंग. क्रेडिबल एंड इफेक्टिव एक्शन लेने हैं. ठीक है, तो अब लिखो, राइट, क्या चाहिए आपको क्रेडिबल एंड इफेक्टिव एक्शन के लिए? लिखो, राइट. वो तो क्रेडिबल इफेक्टिव लेने, लेकिन वो आप कब ले पाएंगे? लिखिए, द क्रेडिबल एक्शन रिक्वायर्स. क्रेडिबल एक्शन, क्रेडिबल एक्शन हमेशा डेटा पर बेस्ड होता है. ठीक है,
The credible action requires more research, more data. Research data से क्या होता है, right? To make invisible visible. Comma, to create awareness. We require effective action at all levels. अब इफेक्टिव एक्शन क्या? पहला, प्रायोरिटाइजेशन ऑफ गोल्स, prioritization of the goal of empowerment, program of action, along with transparency. Goal, program of action, along with transparency and accountability. Next, actions required to be sustained. So, political will, comma, the support of educated section of the civil society, corporate houses, celebrities, mass media, and any other medium or agency. ठीक है, next paragraph, right, the basic thrust has to be changing the culture which requires new approaches towards socialization. Right, legal reforms, जैसे पॉश एक्ट ये सब डाल सकते हो, कॉमा, इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स, ठीक है. अब नेक्स्ट पैराग्राफ लिखो, इट इज हाई टाइम that we give the second half, the other half of the humanity its due, not just for their betterment, but for our collective good. अब इस पार्ट पे भी आ जाते हैं, that not power over men but power over themselves. Next paragraph लिखो, right, when we talk about empowering women, it is also essential to give
deep thinking over the concept of empowerment. Right? Number of times steps to empower women face resistance because the impression is that empowerment of women means disempowering men. ठीक है, अब लिखो राइट. However, the problem lies with the conventional understanding of power. Where power is seen through the lens of zero-sum game. ठीक है, लिखो राइट. Where empowerment of one is understood as empowerment of the other. So as disempowerment of the other. Next, another flaw in the conventional understanding of power is, जैसे सब फिलॉसफी से आप समझिए पावर को, पावर is that it is seen in terms of domination or coercion. So when is woman empowerment possible? When there is no resistance, means when we are able to communicate the alternative notion of power. ठीक है, अब लिखो राइट. ऐसे कभी कभी बीच में राइटिंग की मोनोटोनी ब्रेक करने के लिए आप ऐसे भी लिख सकते हैं when it is possible. ठीक है, तो ऐसे लिख दो, ऐसे when it is possible to empower women. हैं? मुझे ऐसा कुछ खास लगा नहीं. क्यों नहीं लगा? क्योंकि बहुत रीजन है. पहले तो हाँ, मतलब I can say I come from a community which are like supposed to be very educated community. तो फैमिली में ऐसा कभी रहा नहीं. ठीक है, तो वहाँ पे एजुकेशन बहुत, मतलब the main reason is education only. तो if you see वहाँ पे my community, हम कायस्थ हैं, they are supposed to be quite educated community. तो एक education या दादा जी, मुंशी जी, ठीक है, तो एक वो नहीं रहा. Then personal reason भी थे because I was so much involved in myself. जब आप बाकियों से मिलेंगे तब आपको पता चलेगा ना, हम मिलते ही नहीं थे, हमारे पास कभी टाइम ही नहीं था. That I had so much to learn and do. मतलब I was so much self obsessed in involved person.
And then I feel from my home, then when I came to Delhi also, so Delhi is comparatively more open and advanced in comparison to the other regions in India. To Delhi University, fortunately, we get all those things. But matlab, I whenever ऐसे discrimination, there is no person who will never face discrimination, irrespective of sex, gender, and all thing there. But you accept it as a part of life, and you just feel at this place you are lucky if you are not unlucky. So I am a person who remains too much in myself. शायद वो भी reason हो सकता है. Though I keep on talking and my profession is teaching, but otherwise I myself isolate a lot. पता नहीं मतलब for the reason of my hobbies. I have a hobby of reading, watching TV and all, so I don't get time to get involved. Okay. I feel I am some eccentric person. है मेरा, I am not very normal person, मैं कह सकती हूँ. ठीक है, बाकी लोग परेशान भी हो सकते हैं, खुश भी हो सकते हैं. I no idea. मतलब मेरे को खुद की इतनी हॉबीज है कि हमको समय ही नहीं रहता है बाकी चीजों के लिए. मुझे ऐसे लगता है मुझे अपनी हॉबी के लिए समय नहीं. ठीक है, तो आप खुद में रहें, अपनी दुनिया में रहें, तो शायद यू मे नॉट फील द रियलिटी. आप शायद उसमें रह, जो जितना ज्यादा इंटरेक्ट करता होगा उसको उतना रखता होगा. फिर हमारे गोल ही बड़े लिमिटेड हैं, हमारा वास्ता ही नहीं पड़ता. हम अभी इस इंस्टीट्यूट के बाहर ही नहीं जाते. अब यहाँ पे तो कोई ऐसा डिस्क्रिमिनेशन मेरे के खिलाफ तो होगा नहीं. ठीक है, तो हम जहाँ भी गए हमने अपना रास्ता बना लिया और अपनी एक दुनिया बना ली, उस दुनिया में रह लिए. तो बाकी वाली दुनिया से थोड़ा हम कट के ही रहे हैं एक्चुअली. ये भी एक रीजन हो सकता है. आई डोंट नो, फिलोसॉफिकल बातें हो गई. वो तुम्हारा मतलब पर्सनल है. जैसे मेरा अपना अपने प्रॉब्लम ये रहा ना कि बाकी टीचर्स के पास स्टूडेंट्स नहीं थे पढ़ाने को, है, तो वो लोग यूट्यूब पर टाइम दे सके. लेकिन हम लोग कोविड में भी 3-3 बैच कर रहे थे. ठीक है, हाँ, ऑनलाइन चल रहा था ना, तभी से तो टैबलेट कॉन्सेप्ट आ गया. जीएस भी कर रहे थे, पॉल साइंस भी कर रहे थे, तो हम लोग यूट्यूब पे टाइम ही नहीं दे पाए. बच्चों को नहीं, बच्चों के माँ बाप अपनी पकड़ तो फीस तो वही देंगे ना. हाँ, तो वही कराने ये. हाँ, तो हम आई नेवर मतलब मेरे एक सीनियर ने मुझे एक बात बोली और मुझे लगा वो बहुत इम्पोर्टेंट है. उन्होंने ये बोला कभी पैसे के पीछे मत जाओ, आप लियाकत के पीछे जाइए. लियाकत मीन्स क्वालिटी, एक्सीलेंस के पीछे आप जाइए. वो दिन था, उस समय तब हम लोग कॉलेज में थे, बहुत जॉब वॉब ढूंढा करते थे, पैसे वैसे. तब फिर फ्रॉम दैट डे आई कुड रियलाइज दैट इज इम्पोर्टेंट. एंड डोंट लिव एज पर अदर्स. दूसरों के लिए नहीं रहो, बी ऑथेंटिक. आप अपनी दुनिया खुद बना लो. आपको जितने लोग पसंद हैं, जितने लोगों के साथ आपको अच्छा लगता है, उतने लोगों की दुनिया में ही रहो. आउटसाइड दुनिया में मत रहो. मतलब ये हमारी फिलॉसफी है. दिस इज व्हाट आई डू इन माय लाइफ. हमें मान लीजिए बच्चों के साथ अच्छा लगता है तो हम इसी दुनिया में रहते हैं. क्लास आते जाते हैं, हम बाहर का कोई लेना देना होता ही नहीं है मुझको. मतलब यू हैव 24 hours and a limited life. What else do you want? So you decide. हाँ, घर से प्रेशर मतलब पता नहीं. हाँ, हाँ, मतलब ठीक ही घर से हैं. रईस घर भी कह सकते हो, गरीब घर भी कह सकते हो, दोनों ही तरीके का है.
मतलब ऐसा नहीं था कि कोई दिक्कत थी, हम तो बहुत ज्यादा क्लियर भी थे, कोई दिक्कत नहीं है लड़के शादी करने, कौन कहेगा जॉब करना है, ठीक है। तो शादी वाला एक ऑप्शन तो रहता ही है लड़कियों के पास, इतना तो माँ बाप करा ही देते हैं कहीं ना कहीं। हमको पता था प्लान ए, प्लान बी, प्लान सी, ठीक है, ये पता था कहीं ना कहीं एडजस्ट कर लेंगे अपना अनुसार अपनी जिंदगी, जो दैट विल बी अ गुड लाइफ, इतना एडजस्ट कर लेंगे, इतना तो पता था, इतना तो अपनी क्षमता पे भरोसा था। लेकिन अभी आई लिव इन माई ओन वर्ल्ड, मेरे घर में भी सारे लोग यही कहते हैं ये टीचर ये कर रहा है, यहाँ सब परेशान रहते हैं, यूट्यूब पे रहते हैं, हमको रहता है कि जब हमें अच्छा लगेगा तभी हम करेंगे, एंड माई बेसिक नीड्स आर वेरी लेस, तो हमको ऐसा कोई रेस्टलेसनेस फील नहीं होती विद द कंपटीशन। आई एंजॉय माई वर्क, क्या है, जाना है, सोना है, खाना है, वैसे भी इतना वेट भी है, क्या ही खाएंगे, लेकिन खाते रहते हैं तो डजंट मैटर, I don't live for others, I live for myself. And whatever gives me comfort and a sense of well-being, I do it. मतलब सबसे important what I have realized is the mental peace. So don't look at others. दूसरे की थाली में घी ज्यादा दिखता है, ठीक है, तो दूसरे की थाली नहीं देखो, अपनी थाली देखो, तुम भी कितना घी खा सकते हो, ठीक है। बाकी बस भगवान ने इतना दिया, कोई दिक्कत थोड़ी है, ठीक है। भगवान ने जब सब कुछ, भगवान इज देयर, आई एम फर्म बिलीवर इन गॉड बिकॉज आई थिंक देयर इज लॉट ऑफ गॉड्स ग्रेस, तो दैट इटसेल्फ हैज मेड मी बिलीवर, उससे चल जाता है काम। हाँ, तो बस वो सब हम ये सोचते हैं, आई फील आई एम अ मीडियम एंड आई फील गुड, मुझे ये बहुत अच्छा लगता है, देयर पीपल आर कमिंग एंड वर्किंग हियर, सम शो इज गोइंग ऑन, लोग आ रहे, काम कर रहे, बात कर रहे हैं, तो बाकी लोगों के लिए भी हम काम, मतलब आई कैन जस्ट, आई हैव अ हाउस, बाहर हम जाके शिफ्ट भी हो सकते हैं, लेकिन ठीक है, आ रहे जा रहे हैं, लोग हैं, मिल रहे हैं, बातें कर रहे हैं, तो so bipolar type person, very isolated but also very social, या मजा आता है सब सुनने बुनने में, ठीक है। फिलहाल चलो आंसर खत्म करते हैं, आज तो यूट्यूब पे पब्लिक पे आ गया, बाय गॉड, ठीक है, चलो। इसीलिए मतलब मुझे गांधी की लाइफ बहुत सही लगती है, जीरो टेंशन, जैसे आप हैं वैसे ही रहिए, तो कॉम्प्लिकेशन नहीं रहता है, दिस इज द बेस्ट थिंग विच आई लाइक इन गांधी, कि इनका फॉर्मूला जिंदगी का बड़ा आसान है, जैसे है सही रहो, किसी का बुरा नहीं करो, तो हाँ, मतलब गांधी ने बहुत ऐसी बेसिक बातें कर दी और मुझे लगा कि कितना पीसफुल लाइफ है वो, कि आप किसी का बुरा नहीं सोचें, मत करें ये सब, that ultimately gives you peace. So I started developing a lot of attraction towards Gandhi's thinking, that he has made many complex things very simple. तो वो सब चीजें हैं, पता नहीं कितना समझ रहे हो तुम लोग जो बोल रहे हैं, ठीक है। चलिए लास्ट कहाँ पहुंचे हम? हाँ, आफ्टर ऑल व्हेन इट इज पॉसिबल, ठीक है, तो लिखो राइट, सिंस या ऐसे लिखो, अनटिल एंड, सिंस हटा दो फिर लंबा हो जाएगा, लिखो अनटिल एंड अनलेस, until and unless we do not change the notion of power, where power is not seen as a zero-sum game, rather an empowerment where power of one
is not seen as, is seen as empowerment of the other. Comma, once we are able to convince that empowerment of a woman is not a source of insecurity, rather a key to more fulfilling interpersonal relations, comma, better upbringing of children in family, comma, creation of more harmonious and productive society, and even more peaceful world. It can be hoped that resistance starts falling down and a positive environment is created. ठीक है, इतना करके आप लिख सकते हैं. क्या सीखा? पहले एक थीम पकड़ो, उसका बिगर पर्सपेक्टिव सोचो, फिर बिगर पर्सपेक्टिव ले करके नैरो डाउन करो टॉपिक पर, फिर टॉपिक के बेसिक्स सोचो. मान लो वुमेन है, क्यों, क्या कॉन्सिक्वेंसेस हैं, क्या कॉस्ट इज पेड, what benefits, what is being done, what needs to be done. If you have given a chance, what you would like to do, and you may end up on a positive note that we can hope that things will change for the good. So write more balanced, not very emotional, not very वैसा आंसर लिखो but यूज इमोशनल वर्ड. ठीक है, तो अभी शायद तेरे से वर्कशॉप है ना, हम चाह रहे थे कि गलतियां दिखा दें, चलो हम दिखाते हैं बाद, नेक्स्ट क्लास में वी विल शो. अब वुमेन का बहुत हो गया, आई विल चूज सम अदर टॉपिक, बट मोस्ट प्रोबेबली विल बी एबल टू मीट आफ्टर न्यू ईयर. सो हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल ऑफ यू. हैं क्या 24 ईयर्स न्यू ईयर, मतलब कौन सा न्यू ईयर ले जाने वाले थे.